Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 12th, subject economics. Our today's topic is concept of oligopoly. O-L-I-G-O-P-O-L-Y. Concept of oligopoly. Oligopoly is a form of market, a form of market in which there is a few big sellers of a commodity and a large number of buyers. Such sellers has a significant share. Such sellers has a significant share of the market. There is a high degree of interdependence among the sellers regarding their price and output policy. Regarding their price and output policy. Because there are only a few sellers, price and output decisions of one seller significantly impact the price and output policy of output decisions of other sellers in the market. Accordingly, there is a severe competition in the market, which is called cutthroat competition. What is the concept of oligopoly? Oligopoly is a form of market. In which there is a few big sellers of a commodity and a large number of buyers. Oligopoly concept market में big sellers हैं, a few big sellers is a form of market in which there is a few big sellers of a commodity and large number of buyers. Such sellers has a significant share in the market. Such sellers has a significant share of the market. There is a high degree of interdependence among the sellers regarding their price and output policy. Because there are only few sellers, price and output decisions of one seller significantly impact the price and output decisions of other sellers in the market. Accordingly, there is a severe competition in the market, which is called cutthroat competition. यहाँ पर हमें याद रखना है
जो ओलिगोपोली कॉन्सेप्ट है इसमें a few big sellers होते हैं, a few big sellers of a commodity but large number of buyers. buyers की तादाद ज़्यादा है, sellers की तादाद बहुत कम है, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े sellers होते हैं, उनकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन जो buyers होते हैं large number of buyers. इस सिचुएशन में यहाँ पर such sellers has a significant share of the market, यानी मार्केट में इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट में इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर इनकी हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है among sellers, जो रिगार्डिंग देयर जो इनका प्राइसेस और आउटपुट पॉलिसी होती है। यहाँ पर इन जो बिग सेलर्स होते हैं, बिग फर्म्स होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट हैं टुवर्ड्स ईच अदर रिगार्डिंग द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी, रिगार्डिंग द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। अब हम देखते हैं यहाँ पर बिकॉज देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, जबकि यहाँ पर फ्यू सेलर्स है। अब जो प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस होते हैं ऑफ वन सेलर सिग्निफिकेंटली, इसका इम्पैक्ट होता है प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ अदर सेलर्स इन द मार्केट। यहाँ पर एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है among the sellers, severe कंपटीशन होता है जिसको हम कहते हैं which is also known as कट थ्रोट कंपटीशन। इनका ओलिगोपोली सिचुएशन में जो सेलर्स होते हैं इनका कट थ्रोट कंपटीशन होता है। एग्जाम्पल अगर हम ये ले लेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे ऑटो प्रोड्यूसर्स हैं इंडियन मार्केट में, अगर हम बात करेंगे जो हमारे देयर आर ओनली फ्यू ऑटो प्रोड्यूसर्स इन इंडियन मार्केट, जैसे हमारे पास मारुति है, टाटा है, फेट है, फोर्ड एक्स्ट्रा। ये जो कंपनीज हैं ये बिग सेलर्स हैं, मारुति के बिग, टाटा के भी है, फेट के हैं, फोर्ड के हैं, ये फ्यू बिग सेलर्स हैं। लेकिन जो बायर्स हैं, बायर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। अब जो ओलिगोपोली है इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, इट हैज़ बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इन broadly classified as collusive, oligopoly and non-collusive oligopoly। अब जो ओलिगोपोली मार्केट है इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, इट हैज़ बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड into collusive oligopoly and non-collusive oligopoly. What is collusive? COLLUSIVE, collusive oligopoly क्या है? Is a form of market in which there are few firms. यहाँ पर few firms है in the market and all decide to avoid competition, or few firms in the market and all decide to avoid competition through a formal agreement, they collide to a form of, वहाँ पर एक कॉर्टेल किया जाता है, CARTEL, कॉर्टेल एग्रीमेंट किया जाता है, कॉर्टेल एग्रीमेंट, एंड फिक्स फॉर देमसेल्व्स आउटपुट quotas and market price. Sometimes a leading firm in the market is accepted by the cartel as a price leader. Members of the cartel accept the price as fixed by the price leader. अब यहाँ पर collusive oligopoly क्या है? Is a form of market in which there are few firms in the market
and all decide to avoid competition through a formal agreement. They collide to form a cartel and fix for themselves output quotas and market price. Sometimes a leading firm in the market is accepted by the cartel as the price leader. Members of the cartel accept the price as fixed by the price leader. कोलिस्टो ओलिगोपोली में क्या है, यहाँ पर इस सिचुएशन में फ्यू फर्म्स होती हैं और जो फ्यू फर्म्स हैं, फ्यू फर्म्स या फ्यू सेलर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम अवॉइड करेंगे कंपटीशन. कंपटीशन क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है थ्रू ए फॉर्मल एग्रीमेंट. उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं कार्टेल. वो एक फिक्स, वहाँ पर एक फिक्स किया जाता है फॉर्मल एग्रीमेंट जो है जिसको हम कार्टेल कहते हैं. एक एग्रीमेंट फिक्स किया जाता है उनके लिए जो आउटपुट पॉलिसी होती है या जो उनका कोटा होता है या मार्केट प्राइस होता है, वो उनके लिए उनका एक एग्रीमेंट होता है. उस एग्रीमेंट से वो बाहर नहीं जाते हैं. यानी कि प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी जो कोटाज होते हैं उसके लिए इनका एक एग्रीमेंट होता है. उससे उस कार्टेल उस एग्रीमेंट से वो बाहर नहीं जाते हैं. और वहाँ पर क्या किया जाता है, समटाइम्स a leading firm in the market is accepted by the cartel as a price leader. एक फर्म को मुंतखब किया जाता है, उसको प्राइस लीडर का खिताब दिया जाता है. जो बाकी मेंबर्स ऑफ द कार्टेल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं उसी फर्म का प्राइस एज फिक्स्ड बाय द प्राइस लीडर. वो उसका एक्सेप्ट करते हैं. इसको कहते हैं दैट इज कोलिसिव ओलिगोपोली. फिर है नॉन कोलिसिव. Non-collusive oligopoly में क्या है, is a form of market in which there are few firms in the market and each firm pursues its price and output policy independently of the rival firms. Each firm tries to increase its market share through competition. Competition is preferred to collusion as a means of profit maximization. Because there are only a few big firms in the market, there is a cutthroat competition. Non-collusive oligopoly क्या है, वहाँ पर बिग फर्म्स होते हैं, फ्यू बिग फर्म्स जो होते हैं इन द मार्केट. इनका कोई ईच फर्म परस्यूज इट्स प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी इंडिपेंडेंटली. वो इंडिपेंडेंट होती है. जो उनका प्राइस पॉलिसी होती है, जो उनकी आउटपुट पॉलिसी होती है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं. जिस यहाँ पर नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली जहाँ पर है वहाँ पर वो फर्म्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं रिगार्डिंग देयर आउटपुट पॉलिसी एंड प्राइस पॉलिसी. और यहाँ पर इनका वो दे ईच फर्म ट्राइज टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर थ्रू कंपटीशन. यहाँ पर एक कंपटीशन होता है. हर एक फर्म की कोशिश ये होती है कि मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए. और इनका जो मोटिव होता है दैट मोटिव इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में मोटिव होता है एक फर्म का टू अचीव टू उनका जो मोटिव होता है, मोटिव ज़्यादा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर ये अब ये कंपटीशन होता है. इस कंपटीशन को हम कहते हैं बिकॉज देयर आर ओनली ए फ्यू बिग फर्म्स इन द मार्केट. जब फ्यू बिग फर्म्स इन द मार्केट में होती है देयर ऑकर्स ए कट थ्रोट कंपटीशन. यहाँ पर एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है. हर एक फर्म का यही टारगेट होता है. हर एक नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में हर एक फर्म का टारगेट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अपना शेयर इंक्रीज़ करना, अपना शेयर इंक्रीज़ करना है. इसलिए यहाँ पर एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है. और इस सिचुएशन में वो एक दूसरे के अंडर नहीं होते हैं. एक दूसरे के वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं. वो राइवल फर्म्स जो होते हैं उनकी राइवलिटी होती है. फर्म्स की क्या होती है, राइवलिटी होती है. अगर एक फर्म
प्राइस इंक्रीज करती है, दूसरी भी कोशिश करती है। अगर एक फर्म आउटपुट इंक्रीज करेगी, दूसरे का भी ही कोशिश होती है कि वो भी इंक्रीज करेगा। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर few firms in the market and each firm pursues its price and output policy dependent of the rival firms. Each firm tries to increase its market share through competition. Competition is preferred to collusion as a means of profit maximization. Because there are only a few big firms in the market, there is a cutthroat competition. It is non-collusive oligopoly, collusive oligopoly, and the concept of oligopoly. Thank you for today.